آپ کو بتائیں دریائے راوی میں اگلے 48 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں اضافے کا امکان ہے۔ راوی میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ متعلقہ ادارے ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں۔ شاہدرہ کے مقام پر 22,000، ہلوکی 71,000 اور جسٹر سے 45,000 کیوسک تک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ راوی کے کنارے جھونپڑیاں تاحال قائم ہیں۔ خانہ بدوشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل نہ کیا جا سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ زین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے 23 سے 29 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ اسی حوالے سے ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مسلسل بارشوں کے باعث شہر لاہور کے جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ راوی میں جو بھی نچلے درجے سے اوپر درجے کا سیلاب جو ہے وہ اس کے بھی خدشات کا اظہار جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی ہیں وہ جاری کی جا چکی ہیں، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ راوی میں بلوکی کے مقام پر 31,000 کیوسک کا پانی ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، جبکہ جسڑ کے مقام سے 45,000، اور اس وقت جس مقام پر میں شاہدرہ کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر راوی میں سے 22,000 کیوسک کا پانی ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مسلسل بارشوں کی پیشگوئی کے باعث جو ہے وہ جتنے بھی نچلے سے لے کے اوپر درجے کا سیلاب ہے اس کے خدشات ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں گزشتہ روز بھی لاہور میں طوفانی بارش کے باعث ملتان روڈ کے قریب راوی کے مقام پر جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 گاؤں جو ہے وہ زیر آب آ گئے تھے، جس کے باعث 1-2 فٹ گاؤں میں جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا تھا، جس کے بعد جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید جو ہے وہ مسلسل 1 ہفتے تک بارشوں کی پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے زین علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو بھی بالآخر خیال آ گیا۔ دریا کے کناروں اور بارشی پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ بارشوں اور سیلاب کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ آفیسرز اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کے باسی دریائے راوی کے کناروں سے دور رہیں، ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ راوی کنارے ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مراسل کے مطابق شہری دریا پر نہانے، کشتی رانی یا کسی بھی مقصد کے لیے مت جائیں۔ کسی بھی قسم کی تفریحی یا کاروباری سرگرمی کے لیے بھی دریا کے قریب جانا ممنوع قرار۔ شہریوں کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے، نہانے جانے یا کھیلنے سے روکنے کی ہدایت کر دی۔ دریا کنارے بسنے والے خاندانوں اور جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اپیل کی گئی۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر انتظامی افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ ملازمین کو ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے ڈیوٹی کا پابند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کہتی ہیں کہ ہنگامی حالات کے پیش نظر افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کی گئیں۔ تمام انتظامی افسران فیلڈ میں موجود زمینی حقائق پر نظر رکھیں۔ ہنگامی حالات میں کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کے تعاون سے ہی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کینال روڈ پر پڑنے والے 3 بڑے شگاف تاحال موجود۔ واسا کی جانب سے شگاف بھرنے کا کام جاری۔ سڑک کے شگاف بھرنے میں چند روز لگیں گے۔ گزشتہ روز موسلادھار بارش کے باعث مسلم ٹاؤن انڈر پاس پر 3 شگاف پڑے تھے۔ مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد عابد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گزشتہ روز لاہور میں موسلادھار اور طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے جل تھل ایک ہوا اور اکثر مقامات پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سب سے بڑا واقعہ جو ہوا کل وہ یہاں لاہور میں کینال روڈ جو کہ ایک لاہور کی پہچان خیال کی جاتی ہے، اس پر 3 بڑے شگاف پڑے اس بارش کی وجہ سے، کیونکہ یہاں سے جو انڈر پاس کا پانی نکالنے کے لیے جو سیوریج لائن بنائی گئی ہے وہ بیٹھ گئی، جس پر شگاف سڑک پر پڑے اور یہ تینوں بڑے شگاف تاحال موجود ہیں۔ واسا حکام یہاں پر موجود ہیں، وہاں سے کچھ مٹی نکال کے ابتدائی کام تو شروع کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسے اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس میں ہنگامی طور پر یا فوری طور پر ان شگافوں کو پر کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہوں۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ جلد ہی یہاں پر تمام جو کارروائی ہے مکمل کر لی جائے گی اور اس سڑک کو بحال کر دیا جائے گا۔ اگر پنجاب یونیورسٹی سے مسلم ٹاؤن انڈر پاس کے ساتھ سے گزریں تو جو سڑک ہے وہ اس وقت بند ہے۔ مسلم ٹاؤن انڈر پاس جو ہے وہ کھلا ہے، وہاں سے ٹریفک چل رہی ہے، لیکن اگر فیروز پور روڈ تک جانا ہے اس سڑک کے ذریعے تو یہ سڑک بند ہے۔ اس کے لیے سروس روڈ استعمال کرائی جا رہی ہے۔ گو کہ آج چھٹی کا روز ہے جس کی وجہ سے زیادہ رش تو نظر نہیں آ رہا، لیکن کل
जिस वक्त वर्किंग डे शुरू होंगे तो लाजमी तौर पर इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होंगे। लेकिन इस वक्त यही सूरत देखी जा रही है कि शगाफ ताहाल मौजूद हैं और उनके लिए इमदादी कार्रवाई इब्तदाई तौर पर शुरू होती हुई नज़र आ रही है। जी शुक्रिया जाहिद। बादामी बाग सब्जी मंडी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से गंदगी के ढेर जमा हैं। जगह जगह गंदा पानी जमा होने और मक्खी मच्छरों की बहुतात से मुज़ी अमराज फैलने का खदशा है। शहरियों को सब्जी मंडी से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा। जी उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह गंदा पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, कीचड़ के ढेर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खुसूसन वो हजरात जो पैदल चल के आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज नहीं, ये तकरीबन सिलसिला ये बहुत अरसे से चल रहा है। जितना गंद है ना, ये जब बारिश होती है ये तो हाल होता ही है, मगर बारिश के बाद भी ऐसा ही हाल होता है। ये बारिश हुई है, 20 दिन महीने बाद भी देखेंगे ऐसा ही नज़र आएगा। ये पाँव देखें, हमारे कपड़े देखें। कुछ जो शहरी जो हैं वो हुकूमत से और इंतज़ामिया से शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बार बार इंतज़ामिया को दरख्वास्त की सफाई के हवाले से, लेकिन मुतल्लका हुकाम के सर पे जून तक नहीं दिखी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सफाई नहीं की गई। हालांकि बार बार शहरियों ने दरख्वास्त की, लेकिन कहीं भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पे मक्खी मच्छरों की बहुतात नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मोज़ी अमराज फैलने का खदशा भी है। उसामा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं, यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल होने के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA को रिमोट ऑडिट पर क्लियर कर दिया है। आयासा ने चंद माह कबल PIA का ऑनलाइन ऑडिट किया था। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में PIA और CAA का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल ऑडिट में कामयाबी के बाद ही PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल हो सकेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राहील अली से। राहील, आगाह कीजिए। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल होने के मामले पर जो अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है, और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA को रिमोट ऑडिट में क्लियर कर दिया है। जायका कहना यह है कि PIA का आयासा ने ऑनलाइन कवर किया था। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में PIA और CAA का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल ऑडिट में कामयाबी के बाद ही PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें जो है बहाल हो सकेंगी। जायका कहना यह है कि एयरलाइन जो है वो PIA पर 2020 में जो है वो यूरोपीय ममालिक में जो है वो परवाज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी। ताहम ऑडिट क्लियर होने के बाद इस बात की उम्मीद पैदा हुई है कि जल्द ही PIA की परवाज़ें जो हैं वो यूरोप के लिए शुरू कर दी जाएंगी। जी ठीक है राहील अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि आयासा ने चंद माह कबल PIA का ऑनलाइन ऑडिट किया। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में PIA और CAA का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल ऑडिट में कामयाबी के बाद ही PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल हो सकेंगी। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम गर्म, हब्स और गर्मी की कैफियत बरकरार। महकमा मौसमियात ने आज से 29 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने 48 घंटों में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा जाहिर किया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी, हब्स और गर्मी की कैफियत भी बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा और हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आज से 29 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर। दूसरी जानिब मुसलसल बारिशों के पेश नज़र PDMA ने भी खतरे की घंटी बजा दी। मुसलसल बारिशों के बाइस 48 घंटों में दरियाए रावी, चनाब और जेहलम में सैलाब का खदशा। PDMA ने सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत कर दी। फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में शहर लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 91% रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, निगरान पंजाब हुकूमत के हस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं।
सरकारी हस्पतालों में मरीजों की आसानी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि शोबा रेडियोलॉजी पैथोलॉजी को आउटसोर्स किया जाएगा। सरकारी हस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीवैम्पिंग भी कोशिश भी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से हस्पतालों के हालात बेहतर करने के हवाले से अहम इकदामात सामने आए हैं, जिसमें निगरान हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि हस्पतालों की जो सर्विसेज हैं इनको आउटसोर्स किया जाएगा, जिसमें रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी शामिल है। रेडियोलॉजी के अंदर जो MRI है, CT स्कैन है, इसको आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है, जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी और जो जेनिटोरियल है, जिसमें सफाई सुथराई के मुलाजमिन आते हैं, ये पहले ही आउटसोर्स किए जा चुके हैं। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि हस्पतालों के अंदर जो बायोमेडिकल है, नॉन बायोमेडिकल का जो सामान है, इसको भी फौरी तौर पर मंगवा के रखा जाए और कोई भी मशीन ख़राब हो तो फौरी तौर पर उसको रिपेयर किया जाए। इस हवाले से जो निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम हस्पतालों के जो सरबराहान हैं इनको हिदायत जारी कर दी गई है कि गर्मी के अंदर तमाम हस्पतालों के जो एयर कंडीशन सिस्टम है उसको बंद नहीं रखना और 24/7 उसको ऑन रखना है, ताकि मरीज़ों को गर्मी में किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है उसका सामना ना करना पड़े। जबकि इसके साथ साथ हार्ट अटैक के साथ जो मरीज़ दिल के हस्पतालों में आएंगे उनकी 24 घंटे के अंदर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जाएगी और तकरीबन 2 माह के अंदर 7,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं इनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जा चुकी है। जबकि ये भी फैसला किया गया है कि इस वक्त हस्पतालों के अंदर जो HR है इसकी कमी है और इसको पूरा करने के हवाले से जो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है इनकी जो खाली असामियाँ हैं इसको पूरा करने के हवाले से भी इकदामात जारी हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से भी फैसला सामने आया है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनकी वैक्सीनेशन का अमल भी मुकम्मल करवाएंगे ताकि किसी भी किस्म का जो वायरस है तो उससे ये डॉक्टर जो है महफूज रहें और अस्पतालों में जो मरीज़ है इनका बेहतरीन जो तिब्बी इलाज मुआवजा है ये हो सके। जी शुक्रिया बिलाल आपका अपडेट करने के लिए। निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर दिल के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज बंद कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लिस्ट का सामना। जिना अस्पताल के कार्डिक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन न होने के बराबर गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा सके। सैकड़ों मरीज बाईपास ऑपरेशन के मुंतज़िर। मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की बंदिश। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लंबी लंबी लिस्ट का सामना। जिना अस्पताल के कार्डिक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन न होने के बराबर 2 माह में सिर्फ 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा सके। जिना अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से 2 मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाए गए, ताहम दिल के मरीजों को इन जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स में इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जिना अस्पताल से मरीजों को सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों में मुंतकिल किए जाने का भी इंकशाफ। जिना अस्पताल के कार्डिक यूनिट में दिल के बाईपास ऑपरेशन न होने से सैकड़ों मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज मुआलजा बंद होने से मरीज खार होने लगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों मुल्कों के मबैन मुआशी, तजारती और दीगर शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सकाफ़त, सियाहत और वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से फ़्रांस के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत अली, बताइएगा इस मुलाकात के बारे में। बिल्कुल, पंजाब से फ्रांस के स्पेन नेपल्स केले में मुलाकात की। ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी कहना था कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद है। दोनों मुल्कों के माबैन मुआशी, तजारती और दीगर शोबों में ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सकाफत, सियाहत और वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से फ्रांस ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मैनेजमेंट स्केल के हवाले से ट्रेनिंग फराहम करने के हवाले से ताउन जो है उसका को तवाना करने और पैदावार बढ़ाने के हवाले से। शुक्रिया लियाकत, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताएं कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के मबैन मुआशी, तजारती और दीगर शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त और सब्जियों के नर्ख में तेज़ी को ब्रेक ना लगी। मौसमी असरात से महंगाई की रफ्तार मज़ीद बढ़ने लगी। ब्रायलर गोश्त 18 रुपये फ़ी किलो महंगा। फार्मी अंडों के नर्ख भी बढ़ गए। सब्जियों के दाम पहुंच से बाहर हो गए।
महंगाई का सिलसिला जारी, आवाम की बढ़ गई परेशानी, अशिया जरूरिया की कीमतें कंट्रोल न हो सकी। ब्रायलर गोश्त छुट्टी के रोज भी 18 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 593 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 3 रुपए महंगे, 265 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। सब्जियों के नर्ख में भी कमी न हुई। आलू 100 और टमाटर 150 रुपए फी किलो तक फिरोख्त। प्याज 60, लहसुन 450 और अदरक 1100 रुपए फी किलो हो गए। फूल गोभी 180, शिमला मिर्च 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मटर 300 और टिंडे 140 रुपए फी किलो बेचे जा रहे। अवाम का कहना है कि महंगाई रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। चिकन महंगा, हर चीज महंगी है। 510 रुपए 600 रुपए किलो चिकन बिक रहा है। सब्जी तो कोई 200 से कम नहीं है, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? चिकन, सब्जी, हर चीज को आग लगी हुई है। इंसान जाए तो जाए किधर? मानसून के जारी मौसम में सब्जियों की पैदावार और सप्लाई मुतासिर होने से महंगाई बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सार्फिन को बिजली के 11,000 वोल्ट के झटके। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। सार्फिन को बिजली के 11,000 वोल्ट के झटके। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नई कीमतों के इतलाक से सार्फिन पर 3,495 अरब बोझ पड़ेगा। नेपरा ने टैरिफ औसत 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। नेपरा ने रवा माली साल के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी थी और नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला करेगा। नेपरा सब्सिडी एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखकर समाअत के बाद फैसला करेगा। फैसले के बाद विफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज है। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए फी यूनिट इजाफे, जबकि 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे, जबकि 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज है। इजाफे के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए से जायद हो जाएगी। बुनियादी कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज है और मंजूरी के बाद जुलाई के बकाया जात अवाम से वसूल किए जाएंगे। चीनी और आटे की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। चीनी 150 रुपए फी किलो मिल रही। 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपए तक जा पहुंचा। कीमतों में मजीद तेजी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखिए। चीनी और आटे के निर्खों में तेजी का रुझान बरकरार। शहर भर में चीनी 145 से 150 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। 3 हफ्तों में चीनी 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। थोक मार्केट में चीनी का रेट 138 रुपए फी किलो है। शुगर मिल्स रेट 13,500 रुपए फी 100 किलो है। आटे के दाम भी बेलगाम। 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपए तक पहुँच गया। 10 किलो आटे का थैला 1,450 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 2,300 रुपए में दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 140 और सफेद फाइन आटा 150 रुपए फी किलो है। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं इंतजामिया को कम अज कम अशियाए खुरोनूश की कीमतें तो कंट्रोल करनी चाहिए। सच्ची महंगाई तो बहुत ज्यादा है। इतनी महंगाई है कि इंसान जितनी तनख्वाह मिले ना उसमें तो गुजारा है ही नहीं। सारी चीज़ों में से आटा सस्ता था जो कि अब बहुत महंगा हो चुका है। गरीब की पहुंच से बाहर है। आटा, चीनी, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि सुबह रेट कुछ होता है, शाम में कुछ होता है। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती कीमत के जवाब पर आटा महंगा किया जा रहा है और मजीद महंगाई का खदशा भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मजीद आपको बताएं तो महंगाई की हफ्तावार शरह 29.16% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च और टमाटर सबसे ज़्यादा महंगे हुए। महंगाई ट्रेन का नॉन स्टॉप सफर जारी। महंगाई की हफ्तावार शरह 29.16% रिकॉर्ड। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च और टमाटर सबसे ज्यादा महंगे हुए। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 26 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। चीनी 6 रुपए 55 पैसे फी किलो महंगी हुई। अंडों की फी दर्जन कीमत 11 रुपए से जायद बढ़ी। दाल मसूर 2 रुपए,
दाल चना 50 पैसे, दाल माश 17 पैसे फी किलो महंगी हुई। 200 ग्राम सुर्ख पिसी हुई मिर्च 43 रुपए 36 पैसे महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर तकरीबन 10 रुपए, गुड़ 4 रुपए, ताज़ा दूध 35 पैसे फी किलो महंगा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता भर में 9 अशिया की कीमतों में कमी और 12 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।